After one of the deadliest violence that engulfed New Delhi in decades, heavy security deployment has ensured an uneasy calm in the riot-affected areas. Hello and welcome. In this episode of In Depth, we bring you a ground report on how residents are slowly limping back home to pick up pieces of their lives. Over the next half hour, we bring you stories of devastation followed by hope and harmony. A tale of enduring humanity there that chooses to hate less. We are right now in Brijpuri area in the northeast Delhi, one of the areas which was caught in the Delhi violence. And as you can see, this is a school, Arun Modern Public School, and this is completely burnt and charred. And I'll just take you inside the school. This was the office where the principal used to sit, the cashier used to sit, and now you can see it's completely charred, completely burnt. The papers, these were the documents of the school, of the students, of the kids who used to study here, and now these are completely burnt, nothing is left. मैम आप मुझे बताइए कि स्कूल कब बना था ये स्कूल और कब हुआ ये सब, किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन? सन 86 में मैडम ये स्कूल बनाया गया था 1987। जी मैडम। उसके बाद मैम सभी स्टाफ लोग हम यहाँ पे काम करते हैं। मैं कैशियर हूँ स्कूल की। भगदड़ मचने में तभी पता चला कि कुछ लोगों ने बताया कि स्कूल में आग लगा दी गई है, और आग इतनी भयंकर लगी हुई थी मैम कि किसी का आ पाना और जा पाना मुश्किल था। किसने लगाई ये चीज़ें तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतनी भयंकर आग थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे स्कूल के, सारी चीज़ें यहाँ पे सब जल चुकी। आप मुझे मैम अगर अंदर और लेके जा पाए, आप मुझे अंदर लेके जा पाए। ये हमारे स्कूल की बच्ची है शिवानी मैम। एडमिट कार्ड हमारा फीस की वजह से हम एडमिट कार्ड लेने वाले थे, पर जल गया पूरा। फीस वो कैसे जम मुझसे। कौन से आप क्लास में? 10th में हो, और अभी आपका एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम नहीं है? फर्स्ट बोर्ड है हमारे, और अब एडमिट कार्ड जल गया। This is a computer lab, and the only thing left here right now are the burnt over pieces of the CPU. ये हमारा एग्जामिनेशन रूम है मैम, और 24 तारीख में हमारे यहाँ पे पहला पेपर हुआ था। 24 तारीख को पेपर हुआ? 24 तारीख में हमारे यहाँ पे पहला पेपर था। उसके बाद मैम नेक्स्ट डे फिर पेपर था। पेपर की प्रिपरेशन चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं। पेपर चेक भी नहीं किया? और उसी से मैम हम लोगों ने पेपर भी चेक नहीं किए, सिर्फ बच्चों ने अभी हैंड ओवर ही किए हैं। पेपर अभी खुले भी नहीं है, और ये आंसर शीट वगैरह आपके सामने सभी कुछ यहाँ पे डैमेज हो चुका है मैम। These are the answer sheets as we have been told, and it's completely burnt. We are taking you to the locker room, and to a room where basically the books, the study material was kept. And this is right now the condition of that particular room. Flames are still coming out. All the study material, the library has been completely taken down, ransacked, burnt down by the rioters. मैम किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, करेंगे, वापस बनाएंगे स्कूल की? क्या मैम अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, सभी लोग स्पीचलेस हैं, बस दुख में बैठे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा मैम कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्कूल। 18 साल 19 साल मैंने भी इस स्कूल को दे दिए मैम, और समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप ऑनर से बात करते हैं तो ऑनर बहुत परेशान है, वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा नहीं पता मैम। हिंदू मुसलमान सभी बच्चा था, सिख सभी बच्चा था, सभी धर्म का बच्चा था, सभी को एक जैसी तालीम टीचर ने दी है, सभी को अच्छा सिखाया गया है। अब ये किसके दिमाग में कैसी आ गई मैम, ये नहीं पता। I'm right now in northeast Delhi's Mojpur area, from where the violence started in the national capital, and things are limping back to normalcy in this particular area. But we have with us some of the students of class 10th and class 12th. Some of them could not reach
the examination center because riots broke out. Some of them had somehow managed to reach the examination centers, but because of the continuous stone pelting, they had to run back to their respective houses. ये आप कौन सी क्लास में हो? 10th आप 10th में हो? कहाँ है स्कूल? कहाँ पे? शादरा स्कूल शिवाजी शादरा है, शिवाजी पार्क में है, तो पहुंच नहीं पाया आप वहाँ तक। नहीं, सेंटर ग्रीनवे था, दिलशाद गार्डन, और वहाँ पे फिर की वजह से वो कैंसिल कर दिया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की वजह से। कैंसिल कर दिया। तो आप बताया है स्कूल ने कब होगा सब? नहीं, अभी डेट्स नहीं आए हैं। आप मुझे बताइए, आप कहाँ के हैं? मोशपुर का स्टूडेंट हूँ। मेरा जनता कॉलोनी सेंटर था। मैं अपने सेंटर पर 12th के स्टूडेंट हो? 12th का स्टूडेंट हूँ। अर्श मलिक। जी, तो आप पहुंचे उस दिन, क्या हुआ? अच्छा था मैं वहाँ, लेकिन वहाँ पथराव हो रहा था, इस वजह से मेरे को वापसी आना पड़ा। पेपर छूट गया मेरा, 12th की बोर्ड है, नुकसान हुआ पढ़ाई का। सर, आपने भी मुझे बोला कि आपकी किस तरीके से आपने बेटी को अपना पहुंचाया स्कूल, या आप ही जानते हैं? मैडम, एक सिचुएशन तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के जितने भी थे उनके एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए। इनफैक्ट मेरे साथ में क्या हुआ था कि मेरी बच्ची पढ़ती है ईस्ट के स्कूल में। आई एम रिजाइडिंग इन नॉर्थ ईस्ट, तो मेरी बच्ची का सेंटर भी ईस्ट में था, बट आई हैव टू गो थ्रू नॉर्थ ईस्ट। तो ऑल्दो स्टोन पेल्टिंग तो बंद हो गई थी, बट बहुत टेंस एटमॉस्फेयर था। ये भी समझ में नहीं आता कि एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो पहुंच पाएंगे, वापस भी आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। इट वॉज ऑल ब्लैंक, बट समहाउ हुआ मैनेज। बच्चों के लिए एग्जाम भी इतना जरूरी था, पूरा करियर। कोर्स में पूरे साल बच्चे मेहनत करते हैं मैडम, एक साल के लिए बच्चा क्यों पीछे जाएगा? ये तो कोई रीज़न मुझे लगता नहीं कि शायद इस चीज़ को लेके आगे सीबीएसई वालों ने भी कोई फेवर करना है, बिकॉज उन्होंने तो कोई दिया ही नहीं। उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं कि जो बच्चे ईस्ट में पढ़ते हैं और नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो कैसे जाएंगे। उन्होंने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट सेंटर्स सारे के सारे, उन्होंने कहते जितने सेंटर्स नॉर्थ ईस्ट में हैं वो पोस्टपोन हो गए, बट जो बच्चे ईस्ट में थे उसके लिए उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। इनफैक्ट मैंने ट्वीट भी किया था, HRD मिनिस्ट्री को भी किया था, LG साहब को भी किया था, केजरीवाल साहब को भी किया था, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया मैडम। I'm right now in northeast Delhi Shiv Vihar area, and this is one of those areas which were the epicenters of the violence the national capital witnessed, one of the worst riots witnessed by Delhi in the last 2 decades. In this particular lane, this entire lane used to be an example of communal peace, communal harmony. All the houses here are equally shared by people of all the communities, but now you can see the visuals are speaking for themselves. The entire lane, there has been an exodus. People ran for their lives, and all the houses you can see now are completely empty. जी, ये हिंदुओं के हैं और ये यहाँ से वहाँ तक, और वहाँ मोमडन भी हैं। यहाँ कभी भी कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ, कभी भी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पता नहीं कुछ बाहर कोई कहाँ से लोग आए और उन्होंने आके यहाँ दंगा फैलाया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे करीब 30 साल तो हमारी फैमिली को ही रहते हुए यहाँ हो गए, कभी हमने देखा भी नहीं, ना सोचा कभी होगा ऐसा भी हो सकता है। तो सर, ये सभी अब जो घर हमें दिख रहा है, ताला दिख रहा है, इस घर में ताला है, उस घर में कोई नहीं है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो सब लोग भाग गए, सब लोग चले गए ना। जब देखा ना दंगा हो गया, यहाँ से दंगा, ये जो भागने लगे, जब लोगों को अगजनी करने लगे, तो यहाँ से सभी अपनी जान को बचा के हिंदुओं में निकल गए और मोमडनों की तरफ चले गए यहाँ से। और क्या करते हैं यहाँ से? आपने मुझे बोला कि आपका भी बहुत प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हुआ है, पूरा आग। मेरी शॉप है कॉर्नर पे, और उसमें जो है जब दंगाई आए तो मैं वहाँ था, और उन्होंने आते के साथ में सब तोड़ फोड़ कर दिया, सारा का सारा पूरा तहस नहस कर दिया शॉप को भी, और आग लगाने की कोशिश करी, लेकिन हम लोगों ने शटर थोड़ा डाउन कर दिया तो वो कामयाब नहीं हुए, तो फिर वो लोग पीछे भाग गए, तो फिर हम भी शॉप को बंद करके अपने घर में चले गए। तो किस तरफ? तो पुलिस थी यहाँ पे, पैरामिलिट्री यहाँ पे मौजूद थी, सिक्योरिटी फोर्स? नहीं, फोर्सेस तो कुछ नहीं, बाद में ये लोग आए हैं, वरना अगर थोड़ा सा टाइम से लेकिन आई है, लेकिन जो अगर थोड़ा सा पहले आ जाती तो शायद ये घटना इतनी ना रूप ले पाती, इतना नहीं ले पाती। सर, आप मुझे बताइए, आपका घर है? सर, ये मेरा घर है जी। तो आप ये दंगा हो रहा था तो हमें एक दिन पहले हमें कुछ भी नहीं पता था यहाँ पे। अच्छा। अचानक से दंगाई आए यहाँ से और हमें घर में बंद होना पड़ा। उसके बाद अचानक से अगले दिन मिलिट्री आती है और पुलिस वाले आते हैं, हमें यहाँ से निकालते हैं सेफली, और हमें यहाँ से देखो पलायन करना पड़ रहा है। हम इतने परेशान हैं, हमारे सामने ये घर जला गया। जब हम अंदर थे उनसे हाथ जोड़ जोड़ के हम बोल रहे थे कि नहीं रहने दो, हमारा घर है, जल जाएगा, हम जल जाएंगे अंदर। उसके बाद भी नहीं सुना उन्होंने। ऊपर देखो ये आग जलाई, उसके बाद हमने इनको बुझाने के बाद हमें यहाँ से निकाला गया। ये जो एक अच्छा पहले हमेशा से था कि मुस्लिम साथ में, सब साथ में, वो होगा वापस, एक होप है। देखो वो होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये हमारा जो इंडिया है, हमारा जो दिल्ली है, वो ऐसे ही जल जाएगा। ये पथराव जो है हमारे, देखिए आप घर को कैसे तोड़ा गया, सारे शीशे भी सब तोड़ दिए गए ऊपर। होप ये है कि वापस से सब लोग साथ में नॉर्मल होगा, हमारा होप यही, और हम चाहते भी हैं कि ये नॉर्मल से होप
के सब सही हो जाए। सब फैमिली छोड़ के गई है, अगर वो सुन रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि सब मिलकर आओ, कुछ डरने गलत नहीं होगा, हमारे साथ हमारी मिलिट्री है, हमारी इंडिया, सब साथ में रहेंगे। Okay, I've come to this area in Charbagh, which is an interesting old lane because here Hindus and Muslims live cheek by jowl next to each other. And this area has been completely calm and peaceful. This mandir here is totally protected by both Muslims and Hindus. दोनों समुदाय, हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। इस मंदिर को एक तरह से प्रोटेक्ट आप दोनों करते हैं, दोनों समुदाय के। यहाँ इस लेन में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। पंडित जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो पंडित जी एक तरफ और ताज मोहम्मद आप पूरा, हाँ? ये मुझे बताइए पंडित जी, इस एरिया में मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, बहुत शांतिप्रिय एरिया। तो फिर बाहर कैसे हो गया कि लोगों की दुकानें जलाई गई? बाहर आ जाते हैं तो ऐसा ये बाहर के लोग थे या यही के लोग थे? बाहर के लोग, यहाँ के लोग नहीं। हाँ, बाहर से, क्षेत्र का कोई हमारा यहाँ नहीं है, क्षेत्र का नहीं है। वहाँ पेट्रोल पंप हिंदुओं का जलता है, यहाँ एक फ्रूट की दुकान है जो मुसलमान की है वो जलती है, दोनों को नुकसान होता है। ये करवाता कौन है? इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा कि ये कहाँ के लोग हैं, अभी तक किसने किया, ये पथराव किसने करवाया? पथराव का भी कुछ नहीं पता लग रहा। दोनों तरफ से जब भीड़ इकट्ठी होती है तो दोनों तरफ से पथराव हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि उसमें कहाँ से लोग, कौन लोग हैं जो आकर के पथराव कर। ये कहा जा रहा है कि सीए के प्रोटेस्ट को लेकर ये शुरू हुआ, यहाँ शाहीन बाग टाइप एजिटेशन शुरू हो गया था, आंदोलन शुरू हो गया था, उसके रिस्पांस में फिर और दूसरी तरफ से भी प्रोटेस्ट हुए। क्या ये सच्चाई है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह से शाहीन बाग के अंदर लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए वहाँ चल रहा था शांतिपूर्वक, उसके बाद जगह जगह छोटे छोटे शुरू हुए, हाँ। वो भी शांतिपूर्वक चल रहे थे यहाँ पर। अब जैसे चांद बाग है, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो शांति के तौर पर प्रोटेस्ट चल रहा था और वो किसी से, आम पब्लिक से कोई डिमांड नहीं थी, किसी पुलिस वालों से कोई डिमांड नहीं थी, वो डिमांड सरकार से थी। क्योंकि पब्लिक के लोग चाहते हैं, मुस्लिम समाज चाहता है कि जिस तरह से हम हिंदू और मुस्लिम हमेशा से यहाँ हिंदुस्तान के में एक प्यार मोहब्बत के साथ रहते आए हैं, उसी तरह से हम रहना चाहते हैं। हमारे पर सीएए ला करके या एनआरसी ला करके इस तरह की बातें ना थोपी जाएं कि एक समाज को निकाल के बाहर किया जाए। मुझे बताइए क्या नेता जो है आप उनको जिम्मेदार रखते हैं जिस तरह की भाषणबाजी होती है? एक हाँ, यहाँ पे कपिल मिश्रा जी आए थे और यहाँ पे वो एक तरह से आग लगा के चले गए, इधर भी वो बोल के चले गए और जाफराबाद में भी वो बोल के चले। तो आप कपिल मिश्रा को जिम्मेदार रखते हैं यहाँ? नहीं, फुल सपोर्ट करी है जी। पुलिस वालों जो पथराव कर रहे थे उन्होंने 79 से मैं यहाँ रह रहा हूँ जी। उस समय जिस समय ये बसावट हुई थी उस समय हमारी यहाँ आबादी हिंदुओं की 70% थी जी और 30% मोमन थी जी। आज पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ 70% मोमडन है, हाँ। और 30% हम हिंदू हैं जी। इसके उपरांत भी आज तक हमें कोई जो आज देखने को मिल रहा है ऐसा कभी नहीं मिला। दूसरी बात, जो हमारे नेता लोग हैं, चाहे वो पठान साहब हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे हमारे कपिल मिश्रा जी हैं, उनकी गद्दी बनाने के लिए अपने लिए भड़काऊ भाषण देते हैं। पठान ने बहुत बयान दिया कि हमने 800, तो मैंने इस हिंदुस्तान के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने 800 साल राज किया। वो बुजुर्ग उनके कहाँ के थे? उनके आपाते न पापा थे। हमारे हिंदुस्तान की ये संपत्ति है, चाहे उन्होंने लाल किला बनाया हो, चाहे कुतुब मीनार बनाई हो, चाहे ताजमहल बनाया हो, आज मेरे हिंदुस्तान की, हमारे सब दोनों समुदाय की संपत्ति वो है। लेकिन झगड़ा कराने में ये माहिर लोग होते हैं, झगड़ा करने के बाद में हम लोगों को बीतती है, उन पर नहीं बीतती, वो अपनी गद्दी बहुत बढ़िया बात आपने कही। हाँ बताइए। आपके चैनल से माध्यम से सबसे पहले अपील करना चाहेंगे, जो भाईचारा यहाँ पर है, शर्म आनी चाहिए सबको यहाँ पर देख के कि यहाँ देखो क्या है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये भाईचारा बना रहे। राकेश कुमार। तो ये गली में जो भाईचारा दिखाई देता है वो पूरे चांदबाग और यमुना विहार में दिखाई दे, सब जगह दिखाई दे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। ये चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये भाईचारा दिखाई दे, चांदबाग नहीं, मुझे चांदबाग से। तो आपको लगता है ये पूरा वोट बैंक की राजनीति चल रही है? एकदम चल रही है वोट बैंक। आज से पहले झाड़ू से हमारे कपिल मिश्रा जी खड़े हुए थे, खजूरी में उन्होंने ये बयान दिया कि अगर मुझे आप सीट ला देंगे तो इस रामलीला मैदान में यहाँ कब्रिस्तान बना देंगे।
ये उनका बयान। वही आज बीएपी में बदल के आ गया, अपना पटका बदल कर उन्हें फेंक के अपना बीएपी का बदला दे दिया। आप दोनों पुराने दोस्त हैं जी, एक अरसे से 40 साल हो गए हम सब साथियों को, और जितना प्यार इन साइड की कॉलोनी के अंदर ए ब्लॉक से एफ ब्लॉक तक, लोगों को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कहीं तक नहीं। बस अगर आज दिक्कत महसूस हो रही है तो रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो नहीं मिल रही हैं। ये अमन व अमान खराब करने का जो नज़म अब बना है कपिल मिश्रा की तरफ से, और इस जैसी सोच रखने वाले जो और लोग हैं, जो इस तरीके के बयानबाजी न्यूज़ चैनलों के ऊपर उनकी आती है, मेरी भी हुकूमत से ये गुजारिश है कि इन लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। तो आपको लगता है जो सीए पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शाहीन बाग में हो रहे हैं, अलग एरिया, ये वाजिब है, सही है या गलत है? नहीं, एक हुकूमत के खिलाफ एक अपना विचार रखना, एक अपना पर्सनल इंसान का रास्ते के बीच में होने चाहिए। रास्ते के लिए मैं कहूँगा कि निकलने के लिए आवाम को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत से अपनी बात रखने के लिए हमें पूरी बात रखने का अपना हक है, और सब साथी भी साथ होंगे, लेकिन परेशानी किसी आवाम को नहीं और तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आखिर में मैं आपको पूछूंगा कि आपको लगता है इतने दंगे फसाद के बाद भी इस एरिया में अगर मैं आऊं 1 साल बाद इसी तरह से माहौल बना रहेगा? 1 साल बाद नहीं, ये पैगाम दीजिए पूरे मुल्क को जी, ये सरजमीन है भारत जो हमारे बाप दादाओं ने छोड़ना पसंद नहीं करा, और वो सरजमीन हिंद को पसंद किया। और तो जब नेता कहते हैं आपसे कि चले पाकिस्तान चले जाइए, ये हम भी इसी को पसंद करते हैं, सरजमीन भारत को, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त के अंदर हमारी नस्लें भी इस सरजमीन भारत को पसंद करेंगी। धर्म वो है जो हिंदू इंसानों के लिए काम करे, वो है हिंदू, और जो हिंदू को बदनाम करे दंगा करके, वो हिंदू को बदनाम करता है। वो इंसान नहीं है, जानवर है, हिंदू भी नहीं है, वो हमारे यहाँ इंसान ही नहीं है। तो फिर वो अगर कोई मुस्लिम हो जो दंगा करता है, वो असली इस्लाम नहीं है। आप कह रहे हैं कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सही है? जो शख्स अपने मजहब के हटके काम कर रहा है और आगजनी, लड़ाई झगड़े और लोगों की नफरत की राजनीति या नफरत फैला रहा है, उसके पास इंसानियत कहाँ है? जब इंसानियत नहीं तो मजहब भी नहीं है उसके पास, क्योंकि मजहब इंसानियत सिखाता है। And on that note, we slip into a short break. Do stay tuned. Welcome back. A day after violence ceased, India Today reports back tales of hope and harmony from ground zero. भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मेरे को 36 एरिया हो गए, और हम लोग जो यहाँ रहते हैं आपस में भाईचारा हमारा ऐसा है कि उधर मंदिर के अंदर अगर घंटा बजता है तो इधर हमारे यहाँ पे नमाज होती है, और आपस में हम लोगों के अंदर इतनी प्यार मोहब्बत है। हाँ, मेरा नाम ब्रजमोहन शर्मा है। नियर अबाउट 40 ईयर्स हमें यहाँ रहते हुए हो गया, और हम एक दूसरे के बिल्कुल हर काम में, शादी में, काज में, हर साथ में आते जाते हैं, और अगर हमारे मंदिर में कोई भी काम होता है ये लोग शरीक होते हैं हमारे। हाँ, और हम मस्जिद में अगर कोई काम ऐसा होता है या कुछ लेना देना होता है फाइनेंशियल संबंधी, तो हम लोग उसको करते हैं। From Gokulpuri to Guru Tegh Bahadur to Bridgepuri to now Chandbagh, I've tried to get a sense of what's happening across. And what I want to show you is the human face of this all. You can see on this charpai, this is two religions, but one family. This is Arif, you have Jeevan here, and they're all brothers. This is Jeevan. Jeevan ji, आगे आइए आप। ये जीवन जी हैं, ये आरिफ जी हैं, और ये इनका पूरा परिवार है। They're all laborers here, and they belong to Sambhavli, but they live as neighbors in Sambhavli and live as one family. For the past 3 days, Arif bhai has been sheltering Jeevan ji and Satish ji. यही आपका परिवार है? हाँ जी, यही हमारा परिवार है, और हम साथ ही काम करते हैं, रहना चाहते हैं एक साथ। अब यहाँ हालात देखकर जी नहीं लग रहा, इसलिए अपने वापसी जाना चाहते हैं अपने क्षेत्र। 3 दिन तक आप आरिफ भाई के साथ ही रुके, एक ही घर में, एक ही साथ खाया, उन्होंने आपको शरण दी। हम जब यहाँ आए थे जब से हम आरिफ भाई के साथ हैं, आरिफ भाई के साथ रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, इन्हीं के पास रह रहे हैं। हाँ जी, हमें कोई कैसे भी प्रॉब्लम नहीं हुई।
जब ये हिंसा हो रही थी तब आप इनके साथ ही एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहे? एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे जी। डर लगा आपको? पूरे से इलाके में रह रहे थे आप उनके घर में? जी नहीं, इनके यहाँ पर रह रहे थे, हमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। बाकी हम तो यही चाहते हैं कि सब मिलकर रहें और हम अपने घर जाना चाहते हैं जी। हाँ जी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बस यही है, हमारी तरह सब लोगों का प्यार रहना चाहिए ताकि देश में कोई झगड़ाबाजी नहीं होनी चाहिए। हम जैसी मोहब्बत रहेगी तो कभी देश में ऐसी बात ही नहीं होनी। एक इंसानियत की तस्वीर अब भी बरकरार है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये अल हिंद अस्पताल है और यहाँ पर कुछ परिवारों को रेस्क्यू करके लाया गया है इस अस्पताल में। बात करेंगे हम कुछ महिलाओं से। बहुत भाग कर आए थे वहाँ से और जब रास्ते में आ रहे थे तो कुछ हिंदुओं ने रोका हमें मारा पीटी करने लगे। तो क्या पता अल्लाह न जाने क्या करा, तो हम ऐसे मतलब वहाँ से बहुत भागे। हम जो पड़ोस में हिंदू थे ना, उन्होंने हमारा साथ दिया। 20 सालों से वहाँ रह रहे, तो इस वजह से उन्होंने हमारा साथ दिया। 3 दिन तक आप जिन हिंदुओं के घर में रहे, उन्होंने क्या मदद की आपकी? खाना पानी? उन्होंने हमें खाना पानी, जो हमें मतलब हमें सोने की हर चीज़ की सुविधा दी उन्होंने। हम तो एक से रहते थे, हमें कोई वो डर ही नहीं था, 3 सालों से रह रहे हैं। अब ये एकदम वहाँ के बाहर के लोगों ने परेशान कराया हमें। ये आ रहे हैं और वहाँ तो हम दूसरों के घर में ही रुके हैं 3 दिन और उन्होंने हमारी बहुत देखभाल करी है। खाना पीना उन्होंने हमें अपनी तरफ से फुल मदद करी। उन्होंने जितना उनसे बना उतना उन्होंने करा हमारे लिए। This is an area in Mustafabad of northeast Delhi where there was a lot of violence a few days back, and that's the reason why what we have seen. I've been speaking to people over here. The youth are coming out in the evening, late at night, to make sure that they keep a strong vigil. And what is most interesting is that there are people from both communities here. ये तो हमारा अच्छा तक है, सब हम हिंदू मुस्लिम जो इतने हमारी कम्युनिटी है सब भाई बंदी है, हमें कोई परवाह नहीं। हम सब इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद में उन लोगों को रोका, और नहीं तो अगर हम सब लोग एक साथ ना होते तो शायद यहाँ सब कुछ आग जली हो जाती। उस दिन से ये पहरेदारी आप लोग रोज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसी दिन से कंटिन्यूस है, हम कंटिन्यूस खड़े हुए हैं यहाँ पे, रात में भी और दिन में भी। कभी हम लोगों के अंदर कभी इस तरीके का सोच कभी हमने सोचा ही नहीं, कहाँ से भीड़ आई, वो लोग इंसान नहीं हो सकते। So this is a fear, there is a lot of security force that has been deployed in the area, but there are apprehensions. There are fears that people might jump over walls. This particular area where there was a lot of destruction, and these were the houses that were completely damaged and gutted. आज क्या दिन हो गए, 4 दिन हो गए सर, ड्यूटी नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी घर पे पड़े हुए हैं। ये डर लग रहा है सबको, फैमिली हमारी भी डरी हुई है, तो कहाँ निकल के जाइए सर, बच्चों को छोड़ कहाँ जाएं सर। As we've spoken to them, there is a lot of force outside, but they themselves are keeping a strong vigil, just like the day they did when the mob came. Perhaps each and every house in the area would have been gutted that night. With camera person Mahesh, Abhishek Bhalla in New Delhi for India Today. Well, the message is clear. Peace above all. Thank you so much for watching. Do stay tuned for more news on the other side. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.